Randir Gautamji, and many thanks to Gandhi School of Democracy and Socialism of ITM University, Gwalior, to underline a question with help of one of the most objective and knowledgeable persons in our public life, a public intellectual, S.Y.Quraishi, who has made his own mark as Chief Election Commissioner of the biggest democracy of the world. Now, this book is going to be a classic in my perception as a student of society and culture of India. We all know that there are three great divides which affect the fertility behavior of men and women in our society. First great divide has been between poor and rich. It is well known that poorer families have more children because of their high infant mortality rate, as well as number of children affect their potential in the labor market. Hello, sir. On survival resources. Richer people have little more caution and care. Their children also live, otherwise in the first 5 years of infancy, infant mortality rate of rich and poor are radically contrasting. Second great divide has been rural and urban. Given the deficits of health system in rural India, we have high infant mortality rate and maternal mortality rate, and it's an engagement with fear when we have a pregnant woman in the family. We don't know what is going to be the future. But in urban India, given the better health facilities and many other things, there is a great variation. And third great divide, apart from rich and poor and urban and rural, is between educated and uneducated. Even in the poorer families, rural families, if husband and wife are educated, say up to 10+2 or more, their fertility behavior has been found to be directly correlated with their level of education. Another great divide, which is not spoken so much in schools and colleges and universities, but there in the public discourse, is religious divide. That Muslims are a polygamous faith community, and therefore they have more number of children per family unit. Hindus and Christians and Sikhs and Buddhists are not polygamous. They are not allowed to have more than one wife. So obviously there is a mathematical myth. Hum do, hamare do, wo panch, unke 25. I am fairly and widely traveled person. I have taught in many places, and from north to south, east to west, I'm yet to find a Muslim family with one husband, 4 wives, and 25 children. I don't think that even the propagandists can do that job, because it's down there, it's just in the myth, it's a rumor, it's a malicious campaign. But we are waiting for authority to speak about it. And here is the authority, S.Y.Quraishi Sahab, who has used not a general survey, not a subjective research project, but Government of India's facts and figures to explain what is the situation on the ground. Without taking much time, I invite all of you for a very special opportunity of understanding the dynamics of demography,
whether it is a demographic disaster or demographic dividend or demographic deficit, whether religion plays a great role as a variable, or it is poverty, low level of education, underdeveloped facilities in rural India, which affect directly the dynamics of population growth. I am happy that there is a very eminent scholar as a discussant, and there are around 50 people from India and abroad spread in major parts of the country, north, south, east, west, to hear Quraishi Sahab. And later it will be put on YouTube also, so that many more thousands of people can come and visit this website. Quraishi Sahab, thank you so much, and most hearty welcome for a very enlightening evening with you. Over to Randhir Gautamji. Thank you so much, sir, for a excellent, I would say, the deliberation, which invites more attentive mind in order to hear a special lecture from Dr. S.Y.Quraishi. Sir, over to you. I'm sharing your PowerPoint presentation. Yes, thank you very much. Thank you, Professor Anand, for a very nice, generous introduction. Very, very kind of you, and it has encouraged me a lot. This book came about very, very accidentally, as I have mentioned in the acknowledgement, which is given at the end. UN Population Fund Country Director, who is a Canadian, white Canadian, who came to see me and said that Muslims are very backward in family planning. Can you write an approach paper? I was quite taken aback. I said, look, I'm not an Islamic scholar, nor have I ever worked in family planning program, except as a subdivisional magistrate and a deputy commissioner or DM, where we used to have family planning targets. So, but he got after me and was suggesting a consultancy for 1 month of 1,50,000 rupees. My salary at that time was 5,000 rupees. So it was a very attractive offer. But somehow something inside me told me that this is a sensitive subject and I should attempt it, but I should not charge anything. So I said, so I'll do it on one condition, that I'll do it pro bono. He says, look, people come to us with pressure to get consultancies, and here you're rejecting it. No, we don't take anything free. You have to take something. I said, all right, if you insist, I'll take 1 rupee. Now, whether it is 1 rupee or 1 million, it is a financial transaction in the Government of India service rules, and we have to go through a procedure. I said, please write to me a letter. I'll take Government of India permission, and we will sign a contract, which is what we did. 1 rupee contract, and I got the Government of India permission at that time, 95 or 96, rather conveniently, because my boss trusted me. I did not know what will come out of it because, as I told you, I was illiterate about the subject. And since it was free, 1 rupee, so instead of 1 month, it took me 5 months because it was not a full-time thing I was doing. I was Joint Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports. UNFPA was also liberal, and they gave me that kind of time. But what I found through my study opened my eyes, it opened my brain. And I used to suffer from several of those myths which I have dealt with. For instance, I also used to think that Muslims are polygamous and they produce lots of children consciously, deliberately, because they think that Islam discourages family planning. But when I studied the subject, I found the truth was just the contrary. And I found, and I've mentioned and proved, that actually Islam is the pioneer of the subject of family planning, in which situation, why is it that the Muslims oppose it instead of owning it up? So, and I mentioned there is a whole chapter, what does Islam say about family planning, chapter 5, and verses from the Quran. I have had studied Arabic in school for 5 years, so using that knowledge,
I've mentioned about 30 verses of the Quran and many hadith. Hadith is tradition of the Prophet. Whatever he is reported to have said or whatever was reported to be his practice, that is hadith. So, and when we talk of Sharia, it's important to understand that Sharia is consists of 4 components. Top is the Quran, like the Constitution of India. Number 2 is hadith, which is what I just now mentioned. So we find the answers from the hadith. The third is the ijma, the collection, consensus of the community, and qiyas is guessing for interpretation. If we try to interpret that if this is what this ayat had said and this is what Prophet had said, so in such a situation, what would have been the answer? So now I have mentioned everything is from the Sharia because, in fact, when I was writing this book, the controversy about Salman Rushdie and Taslima Nasreen was very strong in India. And my friends, Hindu and Muslim friends, used to warn me, कि बेटा बच के रहना, मार खाओगे, देखो उनकी क्या हालत बनी. So my response was कि ये दोनों तो शरारती हैं, mischievous हैं. I'm writing this and whatever I'm doing, I'm a believing Muslim. Practice में मैं नालायक हूँ, लेकिन I'm a believing Muslim and I will take due care कि इस पे I was more scared of the Muslim audiences and the ulama. So what will they think? So, but fortunately, it has been well received by all quarters. So anyway, if we go slide by slide, I will take here I'm focused out of this book. This book is much larger, but are Muslims overtaking the Hindus, which is the current controversy? And I have lots of videos saying that, you know, Muslims are going to be in power. Deliberately, they're multiplying to capture political power. There is a video which says in 2029, there will be a Muslim prime minister. And this is creating fear and hostility among the Hindus against the Muslims. That is the purpose of this myth being spread. Next slide, please. Now, I have dealt with 5 myths in this, and out of the book, there are many others. The first myth is Muslims produce too many children and are solely responsible for the population explosion. Professor Anand ने जैसे बड़ी ठीक बात बताई कि इन्होंने पता नहीं इनकी उम्र कितनी है, मेरी कल 76 साल हो गया परसों, मैंने भी 76 साल में मैंने 2 बीवी वाला मुसलमान भी एक नहीं देखा. 4 तो भूल जाइए, 3 और 4 मैंने 2 बीवी वाला भी नहीं देखा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो संभव भी नहीं है. Now क्या what is the हकीकत क्या है कि Muslim produce too many children? Now I have my book starts with a confession, clear. Yes, Muslims have the lowest level of family planning, which means the highest rate of growth of population among all communities, and it has also skewed the population ratio between Hindu, Muslim, and other communities. And I mentioned that in 1951 there was almost 10% Muslims, and they have increased to 14%. On the contrary, there were 84% Hindus who have reduced to 79.8, say 80%. So 4% decline of the Hindus, 4% decline increase of all communities, particularly the Muslims. I start with this confession and admission. Okay, I'm not trying to suppress anything. So yes, Muslims have the lowest level of family planning. Only 47% have adopted family planning. Their TFR. What is TFR? Total fertility rate. And what does it mean? It means the number of children a woman will produce in her lifetime. That the TFR is 2.3, which is the highest. Which is the next highest? 2, which is of the Hindus. If Muslims are producing a highest number of children, highest proportion, and they are guilty, the second most guilty are the Hindus because they are producing the second highest number of children. Nobody talks about it. It is presumed it is Hindu versus the Muslim. Actually, Hindus and Muslims are in the same boat. They are on the same end of the spectrum. Now, as I mentioned, if 47%, half the Muslim population has not yet adopted family planning, 58% Hindus have also not adopted family planning. Sorry, 42%.
42% is also nearly half. Now 42% Hindus means crores and crores more than the Muslims producing children. More crores of Hindus are producing children because they haven't yet adopted family planning. So it figures that whosoever is quick in mathematics, so 42% is how many crores of Hindus, and 53% is how many crores of Muslims. Ye somebody during the course of the presentation जो mathematics में अच्छा है वो please calculate करके बता दीजिएगा कि when you convert it into actual numbers, the shocking figures will come to you. Now, thirdly, now between 1951, the first census and the last census that we have is 2011. Unfortunately, the last census has not even been started, and one fails to understand why. Well, 2 years was COVID, but after that, why not? There are lots of speculations going on, but at least I have no answer. Now, Muslim population का net increase हुआ 13 करोड़. उसी पीरियड में हिंदू पॉपुलेशन का नेट इंक्रीज हुआ 67 करोड़. So where are the Muslims overtaking the Hindus? वो गैप तो बढ़ता चला जा रहा है, और as you will see in a slide later. So gap between Hindus and Muslims actually increased from 26 crore gap to 80 crore gap. So thus the propaganda that Muslims are overtaking the Hindus is absolutely false. Next slide, please. Now, Muslim population growth is upsetting the demographic balance. मैंने इसका पहले ही जिक्र किया कि yes, it is true कि 9.8% थे 51 में, अब 14.2 हो गए हैं, और corresponding decline among the Hindus 60 साल में. Now, anybody who is good in math, बच्चे का स्कूल के मैथमेटिक्स भी आपको बताएगा कि 60 साल में 4 percentage point increase मुसलमानों की हुई, यानी 10% से 14% हुए. मेजॉरिटी बनने के लिए 51% बनना है. 51% पहुंचने के लिए 40% इंक्रीज और चाहिए. तो अगर 60 साल में 4 है तो 40% के लिए 600 साल चाहिए. तो जो कह रहे हैं ना बस मुसलमान आ रहे हैं, पावर कैप्चर कर लेंगे, 2029 में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, 600 साल तो बच्चे की मैथमेटिक्स के हिसाब से चलें. एंड व्हेन देयर इज नो चेंज ऑन द ग्राउंड, जो ट्रेंड है वही चल रही है, अगर वही चलती रहे 600 साल, तब 600 साल में होंगे. लेकिन वो ट्रेंड भी चल भी नहीं रही, बहुत चेंज हो रही है, वो बताता हूं मैं आपको. तो Muslims are adopting family planning faster than the Hindus, which is why the gap in their number of children is narrowing. 1991 जो मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 5 सर्वे आ चुके हैं. पहला सर्वे 91 में था, उस वक्त द गैप वाज 1.1. जो इंप्रेशन दिया जाता है, और जो 95 में मैं भी जिससे सफर करता था कि अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान फैमिली के 8 या 10 बच्चे हैं, वो पब्लिक माइंड में घुसा हुआ है. लेकिन द गैप वाज नेवर मोर देन 1 चाइल्ड, and that gap also has been narrowing and narrowing. यहाँ इसमें लिखा है 0.48. this slide need to be updated because ये NFHS 4 का फिगर है. NFHS 5 में it has come down to 0.3. सिर्फ 1/3 of a child का गैप रह गया है, because Muslims are adopting family planning faster than the Hindus. It's a heartening thing. Why? What are the factors? It's a subject of study in detail, but it's a very happy situation. So the demographic balance जो 4% जो हुआ है, it is inconsequential, and in any case is getting arrested. Please next slide. Now ये उसी गैप का है कि जो ये 4 बार जो आप देख रहे हैं 1.1 से घटते घटते NFHS 4 में 0.48 आ गया. अब इस स्लाइड को मुझे अपडेट कर देना चाहिए. इसके बाद 0.3 के स्लाइड है, और भी छोटी स्लाइड एक आ गई है. Next slide, please. Now, myth number 3. There is an organized conspiracy by Muslims to overtake the Hindu population to capture political power, and they're about to succeed within a few years. And many right-wing leaders have been appealing to Hindus to produce 8 to 10 children. कि भाई तुम भी 8-8, 10-10 बच्चे करो, वरना ये मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे. ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि किसी हिंदू ने उनको सीरियसली नहीं लिया,
और किसी ने 8-10 बच्चे पैदा करने की कोशिश नहीं की। वरना आप इमेजिन कीजिए अगर हिंदू मुस्लिम में बच्चे पैदा करने की रेस शुरू हो जाए तो देश का क्या हालत होती। तो ना दूसरा एक फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, नो मुस्लिम लीडर और ए स्कॉलर हैज आस्क्ड मुस्लिम टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन टू ओवरटेक हिंदूज। ये सच है कि कई मुल्लाओं ने ये कहा कि बच्चे फैमिली प्लानिंग इस्लाम के खिलाफ है, और मैं समझता हूँ वो जहालत की बात है कि उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अनपढ़ होते हैं तो उनको मालूम नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ये कि इस्लाम के खिलाफ है इसलिए न करना जायज नहीं, न करो। लेकिन पॉलिटिकल रीजन से किसी को कहते हुए मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, इसकी जो ना ये जो बॉटम स्लाइड है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर दिनेश सिंह हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे अभी 4 साल पहले तक। बहुत शानदार वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड मैथमेटिशियन है, मेरे जानने वाले मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। मैंने इनको कहा कि दिनेश भाई मैं आपको 70 साल का अपना डेटा भेजता हूँ, आप एक मेरा मैथमेटिकल मॉडल बना दीजिए कि अगर यही ट्रेंड चलती रही तो कितने साल में मेरा राज आ जाएगा, मेरा राज में मेरा मुगल राज और मुसलमान राज। तो उन्होंने मेरे उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं समझ रहा था 2029 में मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने कहा कि बच्चों 1000 साल तक तो तुम्हारा राज नहीं आ सकता, 1000 years, बल्कि he said कि Muslims can never overtake the Hindus. This is Professor Dinesh Singh and Professor Ajay Kumar, not my cousins. Next slide, please. Now ये उनका जो मॉडल है ये उसका एक ग्राफ है पिछले 70 साल का। आप देखेंगे जो बॉटम लाइन है ये मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, टॉप लाइन हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ है। किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और गैप घट रहा है कि बढ़ रहा है, कितना गैप बढ़ता जा रहा है। मैंने फिर इनको कहा, ये जब इनके मैथमेटिकल मॉडल मेरे पास आ चुका था कि साहब ये तो पिछले 70 की बता दी, मैथमेटिकल मॉडल तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, मुझे आप अगले 1000 साल का दिखा दीजिए। अगला स्लाइड दिखाइए प्लीज। ये अगले 150 साल का स्लाइड है। वही ट्रेन के मुसलमान की लाइन बॉटम पे है, हिंदू की लाइन नॉर्थवर्ड कितनी नीचे जा रही है, गैप इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तो दैट इज व्हाई ही सेड कि देयर इज नो क्वेश्चन कि कभी भी मुसलमान ओवरटेक कर पाएंगे हिंदू को। तो दैट इज समथिंग शुड बी अ कंफर्टिंग थॉट फॉर द क्रिटिक्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नंबर 4, मुस्लिम्स यूज पॉलीगमी फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, के 4-4 बीवियां इसलिए करते हैं ताकि इनके बच्चे ज्यादा हो। तो इसमें जो एक इसमें प्रोफेसर आनंद ने जिसका हवाला दिया कि हम 5 हमारे 25, ये बहुत देश के एक बहुत बड़े नेता ने, जिनका मैं नाम लूंगा तो फंस जाऊंगा, उनका नाम नहीं लूंगा, और हम 4 हमारे 40, ये तो बहुत सारे नेता रोज कहते हैं, आए दिन कहते हैं। तो ये स्लोगन बार बार हो रहा है जिससे हिंदुओं में डर पैदा होता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन करता नहीं। फैक्ट क्या है कि पॉलीगमी हिंदुस्तान की सभी कम्युनिटीज में इसकी सिर्फ एक बार स्टडी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टडी हुई है। स्टेटस ऑफ वुमेन कमेटी एक थी 1975 में, उसने जब ये मैरिज कस्टम डिवोर्स ये सब एग्जामिन किए, एंड इट फाउंड दैट एवरी कम्युनिटी हैड पॉलीगमी एंड द लीस्ट पॉलीगमस वर द मुस्लिम्स, द लीस्ट पॉलीगमस। अब ये देखिए ये चार्ट है, ये उस टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो ट्राइबल कम्युनिटीज of mostly obviously Hindus or Christians 15%, Buddhists 9.7, Jains 6.7, Hindus 5.8, Muslims 5.7, the least। यहाँ पे एक another interesting phenomenon है कि मुसलमान पॉलीगमी करता नहीं है, बहुत कम है, उसकी बराए नाम है, लेकिन इस राइट को रिटेन करने के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। मेरी मुसलमानों से अपील होती है कि भाई जब तुम करते ही नहीं हो पॉलीगमी तो तुम पॉलीगमी को बैन करने दो। इस बैन बल्कि आप डिमांड करो बैन, तो बाकी के लोग दौड़ेंगे कि ये मुसलमान ये क्या बकवास कर रहा है, पॉलीगमी को बैन करा रहा है, हमारा राइट छिन जाएगा। तो ये तो एक जनरल एक अजीब सा एक माहौल है इग्नोरेंस का, which need to be tackled by educated and enlightened people. Next slide, please.
बाय द वे ये जो चार्ट है और ये टेबल अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे 21वीं लॉ कमीशन प्रोफेसर जस्टिस BS चौहान की उसमें जो 2018 में आई थी, उन्होंने इस टेबल को यूज किया है और इस फाइंडिंग को यूज किया है कि उसमें नाउ पॉलीगेमी स्टैटिस्टिकली इज इम्पॉसिबल। आपको कुछ लोगों ने सुना होगा कि पिछले दिनों हमारे कुछ लोगों की भागवत जी से मुलाकात हुई थी। भागवत जी को मैंने ये किताब और उसके साथ ये जो इसी की समरी जो पावर पॉइंट आपके सामने है, ये बुकलेट की सूरत में ये मैंने दोनों पेश की और मैंने कहा कि सर ये बड़े मिथ हैं और इनको आप जरा पढ़िए और इनको डिस्पेल करना चाहिए। और हम 5 हमारे 25 और पॉलीगेमी तो इंडिया में संभव ही नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा क्योंकि औरतें ही नहीं है इतनी, मर्द औरतों से ही तो शादी करेगा और किससे करेगा? तो एक मैंने कहा साहब आपने सुना होगा जेंडर रेशियो का कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है? क्या कितने मर्द हैं उनके मुकाबले में कितनी औरतें हैं। कुदरत की तरफ से एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है, बराबर के होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है 100 साल से ये इससे सेपरेट स्टोरी, अनफॉर्चुनेट स्टोरी कि औरतों की तादाद, बच्चों की तादाद, गर्ल चिल्ड्रन की कम है। नाउ द लास्ट 2011 के सेंसस के मुताबिक जेंडर रेशियो इज 940 women for 1000 men and this is the best in 120 years। पहले 920-25 होती थी। अब मैंने कहा कि 1000 में 60 लोग तो 1000 में 60 लोग तो बैचलर रह जाएंगे, उनको पहली बीवी नहीं मिलेगी। जब उनको पहली बीवी नहीं मिलेगी तो मुझको दूसरी कहां से मिलेगी? वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें वो बड़े हंसे। मैंने किसी आर्टिकल में लिख दिया तो मेरा कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप उनकी हंसी से इम्प्रेस हो गए। एक्चुअली विच शोज दैट ही रजिस्टर्ड द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक एंड नाउ दिस इज द फैक्ट। नाउ फिर अगला एक और जो मिथ्स को ही डील करता है कि क्या इस्लाम इन पॉलीगेमी को इनकरेज करता है। इसमें मुसलमान बड़े इसमें अनपढ़ है, उलमा को नहीं मालूम है बहुत सारी चीजें जो मैंने इसमें निकाली रिसर्च करके। सिर्फ एक आयत है कुरान की जो पॉलीगेमी से डील करती है और उसके लैंग्वेज ये है कि यू कैन मैरी 2, 3 और 4। अब ये पढ़ के मैं दौड़ के दूसरी तीसरी करने के लिए निकल जाऊं, दैट विल रॉन्ग, क्योंकि पूरी आयत क्या है? पूरी आयत ये है कि यू कैन मैरी 2, 3 और 4 प्रोवाइडेड you can treat them equally, which only Allah knows is very difficult. Therefore, you are advised to marry one. Now, इससे क्या निकला कि actually this is a permission। उस जमाने में अरबिया में औरतों की तादाद ज्यादा होती थी क्योंकि मर्द तो ट्राइबल वॉरफेयर में लड़ते रहते थे, मरते रहते थे, तो वो 40-40, 50-50 शादियां कर लिया करते थे। आजकल भी कुछ शेख तो पैसे वाले कर लेते हैं। उसको रिस्ट्रिक्ट किया था कि नॉट मोर देन 4। सो देयरफॉर इट वाज कंडीशनल ऑन इक्वालिटी। मतलब क्या है कि मैं दूसरी बीवी लाके उसको तो किचन में यूटेंसिल बर्तन धोने के लिए भेज दूं, तो वो मेरी बीवी इस्लामिक बीवी के तरीके से नहीं हुई कि पहली बीवी तो महारानी राज कर रही है, दूसरी बीवी बर्तन धो रही है, ताकि ये ना होने पाए। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली इक्वली। नाउ इम्पोर्टेंटली एक पॉइंट जो मौलाना और इस्लाम, मैंने कहीं इस्लाम में नहीं पढ़ा, मैं हैरान हूं कि उन्होंने इस वो एक्चुअली कंडीशन 1 नहीं है, कंडीशन 2 है। ये दूसरी कंडीशन जो एक्चुअली पहली कंडीशन है वो क्या है कि ये जो आयत थी कि तुम 2, 3, 4 से शादी कर सकते हो, ये अल्लाह बात कर रहा है ऑर्फन्स की और विडोज की। और उसमें ये कह रहा है कि देखो जो ऑर्फन हैं जिसमें विडोज शामिल हैं, उनके साथ नाइंसाफी न करना, उनके साथ बेईमानी न करना, उनका पैसा हड़प न कर लेना, उनकी अच्छी चीज लेकर बुरी चीज न कर देना। सबसे अच्छा तो ये होगा कि उनमें से 2 या 3 या 4 से तुम शादी कर लेना, लेकिन इक्वालिटी करना है ना। तो सबसे पहली शर्त है कि उन ऑर्फन्स में से और विडोज में से शादी करो। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स में मैट्रिमोनियल कॉलम आप देखेंगे, सबको वर्जिन चाहिए होती है, विडो से शादी करने को कोई तैयार नहीं। तो पहली कंडीशन थी, कुरान शरीफ की आयत खुद कह रही है कि उन जिन ऑर्फन्स की बात करते करते कि तुम उनमें उनके साथ इंसाफ करना, उनमें से 2 या 3, 4। ये किसी मुल्ला को नहीं पता, मौलाना को नहीं पता,
ये क्यों नहीं पता, मैं आई एम सरप्राइज। सो इसलिए पॉलीगेमी इस्लाम में भी डिस्करेज है। कुरान शरीफ की ओनली आयत ही कहती है कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट इक्वली, देयरफॉर you can, you are permitted if you can, but your God is warning you that it's not easy. Absolute equality is a condition. Now इसमें मैंने कुरान और हदीस को जब पढ़ा कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पूरे कुरान में फैमिली प्लानिंग की कोई प्रोहिबिशन नहीं है, जबकि कुरान शरीफ में शराब तो हराम है, इंटरेस्ट लेना, ब्याज लेना हराम है, शादी के बियॉन्ड फॉर्निकेट करना, सेक्स करना हराम है, लेकिन फैमिली प्लानिंग तो कोई हराम निकले नहीं हुई। और कुरान शरीफ की एक आयत है जहां अल्लाह ये कह रहा है कि जो चीजें तुमको नहीं करनी चाहिए वो हमने तुमको अच्छी तरह समझा दी हैं। तो ये तो फैमिली प्लानिंग की तो ममानियत ही नहीं की, तो फैमिली प्लानिंग की तो ममानियत नहीं है, बल्कि उसमें से सिर्फ आयतें बहुत सारी हैं, लेकिन वो दे आर इंटरप्रिटेशन और जिनकी होती हैं कि, और कुछ फैमिली प्लानिंग के प्रो होती हैं, कुछ एंटी होती हैं, वो मैंने सारी लिखी हुई है, कोई सप्रेस नहीं किया है। क्योंकि सप्रेस अगर आपको ये अपनी मर्जी की चेरी पिकिंग करें और अपनी मर्जी की आयतें जो पसंद आए वो डालें ना, उससे क्रेडिबिलिटी रिसर्च ही कम होती है। तो सब चीज ट्रुथफुली सामने रख दिए कि भैया इसमें से ढूंढ लो। उसमें से मैंने एक आयत जो ढूंढी, जिसमें जो एक आयत ये कहती है, जो इसमें यहाँ नीचे बॉटम में लिखी हुई है सूरह नूर में, कि जिन लोगों के पास मीन्स है शादी करने के लिए, जब तक वो मीन्स ना हो वो अपने को चेस्ट रखें, पाक रखें, यानी आउटसाइड मैरिज सेक्स न करें, और जब तक शादी न करें जब तक अल्लाह उनको मीन्स नहीं देता ना। अल्लाह जब मीन नहीं देता, ये तो बड़ी प्रोग्रेसिव चीज है। 1400 साल पहले ये भारत सरकार की पॉलिसी है। इसी वजह से 21 साल और 18 साल की एज है, एज ऑफ मैरिज। क्यों है? क्योंकि उससे पहले न लड़का न लड़की इस काबिल होते हैं कि वो एक फैमिली को रेज कर सके। ये चीज कुरान ने 1400 साल पहले की कि तुम शादी जब भी करना जब इस काबिल हो जाओ कि फैमिली को रेज कर सको ना। जैसा मैंने बताया कि जो चीज कुरान में होती थी और वो समझ में किसी को ना आए तो वो प्रॉफिट के पास जाता था एक्सप्लेनेशन लेने। अगला पे वो दिखाइए, तो अगला मैं दिखाता हूँ, तो अगला स्लाइड दिखाएं। हाँ, नाउ इसमें एक शख्स प्रॉफिट के पास चला गया कि साहब ये आयत ये कहती है कि जब तक मेरे पास साधन न हो मुझे शादी नहीं करनी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ लेकिन मेरी सेक्सुअल डिजायर तो है, मैं क्या करूं? तो प्रॉफिट ने उस आयत को रिपीट करके कहा कि ओ यंग मैन, दोज ऑफ यू हु कैन सपोर्ट ए वाइफ एंड हाउसहोल्ड शुड मैरी। व्हाई? बिकॉज मैरिज कीप्स यू फ्रॉम लुकिंग विद लस्ट एट women and preserves you from promiscuity, but those who cannot should take to fasting, which is a means of tempering sexual desires. कि जब तक आप इस काबिल ना हो जाओ तो शादी करना, व्रत रखा करो। व्रत रखने से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती हैं। तरीका भी बता दिया प्रॉफिट ने। और एक और हदीस जो बिल्कुल क्लिंच कर देती है कि एक शख्स के बहुत सारे बच्चे थे, वो आगे बच्चे नहीं चाहता था, वो प्रॉफिट के पास गया। उसने कहा हुजूर मुझसे मेरे बच्चे मुझे और नहीं चाहिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं करने, और मैं फैमिली प्लानिंग करना था। उस जमाने में फैमिली प्लानिंग का एक ही तरीका जाना जाता था जिसका नाम था अरबी में अल अज़ल और अंग्रेजी में विड्रॉल मेथड। बिफोर एजैकुलेशन यू विड्रॉ, सो कोइटस इंटररप्टस जिसका टेक्निकल नाम है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोइटस इंटररप्टस करना चाहता हूँ, लेकिन एक यहूदी है मेरा पड़ोसी, वो कहता है कि ये न करना बहुत हराम है, बड़ा गलत है, ये तो एक माइनर इन्फेंटिसाइड है, बिकॉज बाय डूइंग दैट यू आर किलिंग स्पर्म एंड इट इज इन्फेंटिसाइड। जिस पे प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, जो ने जो तुमको बोला वो गलत है, वो गलत है। यानी तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, करो, गो अहेड। तो इससे बड़ी सैंक्शन और क्या हो सकती है? कुरान मैंने आपको कोट कर दिया, हदीस आपको कोट कर दी। What can be a better sanction for family planning? 1400 years ago, mind you, when there was no population pressure, कोई दुनिया में कहीं पॉपुलेशन का दबाव नहीं था, उस वक्त ये बात हो रही है।
अगली स्लाइड देखें। Islam, in fact, is a pioneer of family planning, as I already mentioned. अल-अज़हर यूनिवर्सिटी है कैरो में, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है। उसके एक प्रोफेसर अब्दुल रहीम उमरान ने एक किताब लिखी थी जिसने मेरी आंखें खोली थी। उसमें उन्होंने लिखा है कि इट इज अ वंडर टू द थिंकर्स ऑफ टुडे that Islam should give so much importance to child spacing and family planning so early in human history and in the absence of compelling population pressures. मुसलमान हमारे उलमा को नहीं पता है ये। अभी भी उस किताब को बहुत ज्यादा खुशी खुशी मेरे मुंह में पेश करने जाता हूँ तो लेते नहीं, तो न उसकी बात करते हैं। तो किसी दिन खुदा उनको तौफीक दे कि इसकी बात करने लगे। अगला सुनाए प्लीज। लेकिन ये है कि मेरी पिटाई भी नहीं करते। अगला। Now, it is interestingly, it is not a Hindu versus Muslim issue at all. The fertility of all communities is dependent, जैसे कि प्रोफेसर आनंद ने हिंट दिया था कि 3 किस्म के जो डिवाइड वगैरह बताए थे उसमें कि एक्चुअली फैमिली प्लानिंग जो है रिलीजन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। इसके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कई, जिसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं: लिटरेसी, इनकम and delivery of family planning services. इसके और ये रीजन से रीजन में फर्क होती है। बिहार और यूपी में ये तीनों चीजें, लिटरेसी, पॉवर्टी वगैरह, ये सब पुअर हैं, तो यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, चाहे मुसलमान के हों, हिंदूज के हों, किसी और के भी हों, क्योंकि यहाँ गुर्बत है। ये लिटरेसी साउथ में ज्यादा एडवांस्ड है, तो उनकी फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि देयर इज नो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, because there are so many interstate variations. बिहार में 3.11 है TFR, केरला में 1.42 है। Now, which is the Muslim rate of growth और Hindu Muslim growth? बिहार की अलग है, गुजरात की अलग है, केरला की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, because of these 3 conditions: literacy, poverty, and family planning services. So, तो हाई फर्टिलिटी जहां पे है वहां बिकॉज ये इन 3 फैक्टर्स की पॉवर्टी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इस स्लाइड से आप देखेंगे कि सबसे पहला लाइन में कि जिसकी इलिटरेट के 3 बच्चे होते हैं, और जैसे जैसे उसकी तालीम बढ़ती जा रही है, कोई हर अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज जैसे जैसे तालीम बढ़ रही है उसके बच्चे गिरते जा रहे हैं। 12वीं क्लास तक पहुंचा नहीं, 1.7 रह गए, 3.6 से 1.7 रह गया। तो लिटरेसी का नेक्सस विद TFR कितना क्लियर है इस स्लाइड से। NFHS 4 पर भेज दे, मुझे ये सारे स्लाइड अपडेट कर देनी चाहिए। नाउ वुमेन, बेसिकली ये बच्चे तो औरतों के होते हैं, मर्दों के तो होते नहीं, तो सारी जो स्टडी है वुमेन पर ही भेज दे, 20 से लेकर 49 तक। तो ये जो है एजुकेशन ऑल्सो डिलेज द एज ऑफ मैरिज। 5 साल अगर मैरिज डिले हो गई तो करोड़ों बच्चे पैदा होने से बच जाएंगे। इसमें आप देखेंगे जिसकी जो इलिटरेट है उसकी 17 साल में शादी हो रही है, और बढ़ते जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई उसकी शादी डिले होती गई, और 12वीं क्लास तक पहुंचते उसकी 22.7 एज में शादी हो रही। इस 5 साल में करोड़ों बर्थ होने से बच गई, क्योंकि एजुकेशन ने मैरिज एज को डिले कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये उसी एज का है कि ये रूरल और अर्बन जो डिवाइड की आनंद साहब ने बात की थी ना, इसी तरह ये रूरल और अर्बन, ग्रीन वाला जो है वो रूरल है और ब्लू वाला अर्बन है। तो लेकिन दोनों की ट्रेंड मोरलेस वही है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी बच्चों की तादाद घटती गई। आगे चले। ना इसी तरह दूसरा है इनकम। पुअरेस्ट लोगों के बच्चे ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है अक्रॉस कम्युनिटीज माइंड यू, तो सबसे गरीब के 3.2 हैं अगर बच्चे, तो हाईएस्ट उसमें 1.6 रह गए। आप देख रहे हैं ग्राफ नीचे जाता हो। नेक्स्ट चलिए। ये वर्कर्स नॉन वर्कर्स इसको स्किप कर दीजिए, वो पैटर्न वही है। आगे चले। नाउ
एज द फैमिली, तीसरा फैक्टर है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ के उनका जाना जरूरी है। मुझे फैमिली प्लानिंग करानी है, स्टेरिलाइजेशन करानी है, कहाँ जाऊंगा अगर डॉक्टर ही नहीं है। और ये देखा गया, मैंने सैकड़ों बार सुना है, प्रोफेसर आनंद विल बेयर मी आउट, कि हर मुस्लिम क्लस्टर को कंटेम्पचुअसली मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, कि उस मिनी पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता। अब डॉक्टर साहब अगर उस मिनी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, नर्स नहीं जाएंगी, तो वो मुसलमान वहां का फैमिली प्लानिंग कैसे करेगा भाई। तो इसकी वजह से एनएफएचएस सर्वे दिखाता है, बार बार दिखाता है, कि मुस्लिम में सर्विसेज की रीच सबसे कम है। जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है, 3 मोस्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर जो मैंने बताया, उसमें सर्विस डिलीवरी है। वो सर्विसेज ही नहीं पहुंच रही, कोई जाके राजी नहीं, जाके खुश नहीं है। तो यही तीसरा चीज है, फैक्टर। आगे चलिए। Now, where do Muslims stand in तीनों socio-economic factors? At the bottom. लिटरेसी में सबसे पीछे। जो मुसलमानों के लिए शर्म की बात है कि जो मजहब तालीम पे इतना जोर देता है कि सबसे पहला वर्ड जब प्रॉफिट पे कुरान शरीफ रिवील होने शुरू हुआ था, जिब्रील प्रॉफिट एंजल ने आके उनको लपेटा और वो पसीने में आ गया, और जिब्रील ने क्या बोला उनसे, इकरा, यानी रीच ओ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ने कहा कि मैं तो अनलेटर्ड हूँ। वो अनलेटर्ड थे, वो उसमें भी गॉड की मसलहत थी, क्योंकि वरना वहां के अरब ने ये कहना शुरू किया था कि ये तो इनकी अपनी दिल की, दिमाग से लिखी हुई पोइट्री है। वही जो अनपढ़ आदमी है, जो गाय भैंस से चराने वाला, उसको वो अच्छी गालिब जैसी पोइट्री कहाँ से लिखेगा। तो जो मजहब सबसे ज्यादा फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव तालीम की बात करता है, वो सबसे पीछे है। ये मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी की बात है, और हमें सोचना चाहिए कि हम इसमें पीछे क्यों हैं। अगला चले ना। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि मुसलमान हर चीज में बॉटम में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बड़ा रिच है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये वो, दे आर शोल्डर टू शोल्डर। आप ये देखेंगे, मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको दिखाऊंगा, हर चीज में मुसलमान बॉटम, सेकंड बॉटम हिंदू है। तो भाई ये तो भाई भाई हुए, इनमें तजाद और लड़ाई झगड़ा क्यों? ये तो दोनों एक ही एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हैं। ये देखिए, लिटरेसी में मुस्लिम बॉटम, हिंदू सेकंड बॉटम। मेन एंड वुमेन के ये चार्ट है। अगला देखिए, ये इसमें वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो, इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे मुस्लिम बॉटम पे। दिस वाज द मेन पॉइंट हियर। नेक्स्ट देखें, एंटीनेटल केयर, जो जैसे मैंने बताया, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज मुसलमानों के पास सबसे कम पहुंची, उसके बाद सबसे कम हिंदुओं के पास पहुंची। वो दोनों अगेन भाई भाई। अगर आगे चलिए, availability of health infrastructure and services lowest for Muslims and second lowest for Hindus. अगला चलिए, availability of advice on family planning lowest for Muslims, second lowest for Hindus. अगली चलिए, ना मैंने फिर इसमें एक पूरा चैप्टर है कि फैमिली प्लानिंग मुस्लिम कंट्रीज में। हमारे यहाँ तो चलिए इसके गिर्द पॉलिटिक्स का कभी घूमती है, एक प्रचार है, झूठा सच्चा जैसे भी है वो है। लेकिन अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में, इंडोनेशिया में, वहां तो कोई इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है। उनके मैंने देखा कि 10 मैंने कंट्रीज का एनालिसिस किया, द बेस्ट फैमिली प्लानिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल कम्युनिटीज एक उस कंट्री में है जो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव समझी जाती है, यानी ईरान, जहां का रूलर पिछले 40 साल से एक मुल्ला है। वहां फैमिली प्लानिंग सबसे अच्छी है। तो उनको क्या मालूम नहीं इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम, उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। दिस इज समथिंग जो हमारे उलमा को, हमारे क्लेरिक्स और मुल्लाओं को समझना चाहिए कि ईरान में तो ठीक है। अब इसमें हमने देखा ईरान है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, और इवन बांग्लादेश has overtaken us कि their family planning is much better than India's. तो और वहां पे बल्कि इंडोनेशिया में सबसे पहले हमने ये देखा था कि फैमिली प्लानिंग का प्रचार इमाम, जो मस्जिद के इमाम है, वो प्रचार करते थे। जो एक खुतबा होता है जुमे की नमाज से पहले,
उसमें वो फैमिली प्लानिंग की बात करते थे, और वो चीज बांग्लादेश ने सीखी, उन्होंने भी की, और इमामों ने मिलके बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, और फैमिली प्लानिंग पूरी इनकी दुनिया में इतनी अच्छी हो गई, जबकि 100% मुस्लिम कंट्री है। अगला चले। ये इसको स्किप कर दीजिए, वही जो पिछला स्लाइड था कंट्री वाइज, ये वो उसी के ग्राफ है। नेक्स्ट प्लीज। या नाउ पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, जिसका हमने जिक्र किया कि राइट विंग वाले इसको हिंदूज को प्रोवोक करते हैं कि तुम बच्चे ज्यादा पैदा करो ताकि तुम मुसलमानों से ओवरटेक, वो तुमको ओवरटेक न कर ले। और इस पे ऑलरेडी मैंने मैथमेटिकल मॉडल का जिक्र कर दिया कि देयर इज नो क्वेश्चन कि भी मुसलमान आगे बढ़ सके। आगे चलें। नाउ रियलिटी क्या है? एज आई सेड कि मुस्लिम एंड हिंदूज आर इन द सेम बोट। तो TFR मुसलमानों का जितना है, ये सबको फिगर को जरूरत है अपडेट करना पड़ेगा, तो उसी से थोड़ा कम हिंदूज का है। तो और जिस रफ्तार से मुसलमान अडॉप्ट कर रहे हैं, वो गैप कम हो रहा है, तो जल्दी वो पूरा कर सकते हैं। एक और चीज जो मैंने भागवत जी को भी बताई थी कि एक वो है अनमेट नीड का कॉन्सेप्ट। अनमेट नीड क्या चीज है? बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा प्लीज। कि बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ मुसलमानों को समझाया कि फैमिली प्लानिंग करनी जरूरी, तैयार हो गए, डॉक्टर नहीं है, सर्विसेज नहीं है, तो क्या करेगा? तो दैट मीन उनकी एक नीड क्रिएट कर दी मैंने, लेकिन उसको मैं मीट नहीं कर पाया। तो NFHS के सर्वे ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा अनमेट नीड, हर कम्युनिटी में कुछ अनमेट नीड है कि लोग जो इच्छुक हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सर्विस नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा अनमेट नीड मुसलमानों की, क्योंकि वहां कोई डॉक्टर जाना नहीं चाह रहा। उस नीड को आप मिशन मोड में 6 महीने के लिए कहिए कि जी हर एक की नीड मैं पूरी करूंगा, किसी को कॉन्डोम चाहिए, किसी को स्टेरिलाइजेशन चाहिए, सब कर देंगे 6 महीने। अब देखिए फिगर कहां से कहा जाएंगी। अनमेट नीड का कौन जिम्मेदार है? सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन। तो और हम लोगों को खुद से वर्क कराए तो हमारी गलती है। नाउ बॉटम में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो वाजपेयी जी के जमाने में थी, बहुत अच्छी पॉलिसी थी। उन्होंने एक टारगेट दिया था कि 2010 तक हम रिप्लेसमेंट रेट पर पहुंचा देंगे। नाउ व्हाट इज रिप्लेसमेंट रेट? कि 2 माँ बाप होते हैं, वो मर जाएंगे, उनकी जगह 2 बच्चे आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई। So the birth rate of 2 should be the replacement rate. But actually it is 2.1 which is the replacement rate. ये 0.1 कहाँ से आ गया? ये इसलिए आ गया कि कुछ बच्चे बचपन में मर जाते हैं, उसका मार्जिन रखने के लिए। तो 2.1 अगर फर्टिलिटी हो रही है, तो दिस मीन्स इट इज a replacement rate. एंड आप जान के खुश होंगे, इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड रिप्लेसमेंट रेट। इंडिया का TFR इज नाउ 2। और इंटरेस्टिंगली आधे से ज्यादा स्टेट्स में 2 से भी बहुत कम। सिक्किम में तो 1.05। वहां तो अभी डर ये लगने लगा कि सिक्किम की ओरिजिनल पॉपुलेशन जो वहां के लोकल हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब वहां तो ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंसेंटिव दिया जाए कि बच्चे पैदा करो, ताकि ये ना हो कि सिक्किमीज पॉपुलेशन खत्म हो जाए। जो यूरोप में और हर जगह जहां पॉपुलेशन डाउन होने लगती है, हम ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा चुके हैं। हमारा क्राइसिस का पीरियड ओवर, हमारा फैमिली प्लानिंग। एंड अनलाइक चाइना, जहां पे डंडा चलाते थे, जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, वहां पे 1 चाइल्ड नॉर्म था। पूरा इंडिया बड़ी तारीफ करता था, लुक एट चाइना, लुक एट चाइना, लर्न समथिंग, दे हैव ओनली 1 चाइल्ड नॉर्म। इतने पछताए, इतने रो रहे हैं वो। उन्होंने 2016 में 1 चाइल्ड नॉर्म को चेंज करके 2 चाइल्ड नॉर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे बुढ़े 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 हो गए, बच्चे उन्हें पैदा हो गए, खत्म हो गए। उन तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन 70%, उनको फीड करने वाली पॉपुलेशन 30%। वहां तो इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस आ गया, बहुत परेशानी। तो 30 साल के उसके बाद उन्होंने उसको अबैंडन किया, 2 चाइल्ड नॉर्म कर दिया। वो से भी, लेकिन लोगों को अब बच्चे ना पैदा करने की आदत पड़ गई थी,
उससे भी कोई बच्चे ज्यादा उन्होंने और लिबरलाइज कर दिया। अब 2019 से 3 चाइल्ड नॉर्म है चाइना में, और ये चीज हमने अचीव की पीआर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे थ्रू 70 इयर्स पीआर से प्रोग्राम क्या रखा हमारा। वी वर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ए नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और टोटली वॉलंटरी रखा, एक्सेप्ट इमरजेंसी में 2 साल सख्ती हुई थी, जिसका हमने नतीजा भुगता कि 20 साल तक पॉलिटिशियन ने फैमिली प्लानिंग की बात करनी बंद कर दी थी, 30 साल तक। तो लेकिन फिर भी हमने वॉलंटरी रखा, और वॉलंटरी से हमने अचीव कर लिया। रिप्लेसमेंट रेट से नीचे हम आ चुके हैं, और हम डाउन 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 ही जाएंगे। अभी इमीडिएटली नहीं जाएंगे, क्योंकि 20-30 साल तक जो बच्चा आज पैदा हुआ है, 14-15 साल 17 साल बाद तो वो बच्चे पैदा करने की पोजीशन में हो जाएगा। तो अभी करंट चिल्ड्रन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे। जैसे 20-30 साल पॉपुलेशन अभी भी इधर बढ़ेगी, लेकिन 2060 में स्टेबलाइज होगी, और उसके बाद 2001 तक काफी नीचे आ जाएगी। आगे चलिए। 25, देखिए इस स्लाइड में लिखा 25 स्टेट्स आउट ऑफ 28 हैव ऑलरेडी गॉन बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। अब कौन रह गई? यूपी एंड बिहार। अरे भाई, यूपी एंड बिहार में फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम अच्छा कर दो, हेल्थ सर्विसेज अच्छी कर दो, एजुकेशन बढ़ा दो, उसकी तो बात नहीं करते। और बल्कि वेरी सॉरी टू से कि एक तरफ लिटरेसी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, लेकिन मुसलमान एजुकेशन के लिए कोई राइट विंग से आपने कभी सुना कि इनकी एजुकेशन पर ध्यान दो, इनके लिए अच्छे स्कूल बनाओ? बल्कि जो मदरसा है उसको बंद करने की बातें करते हैं, जगह जगह बंद कर रहे हैं। एंड व्हाट इज मदरसा? टोटल इग्नोरेंस ऑन दैट। मदरसा इज एन अरबिक वर्ड फॉर पाठशाला, नथिंग मोर नथिंग लेस, जस्ट पाठशाला। उसमें कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाता है। आप अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे कुरान शरीफ, तो कुरान शरीफ, लेकिन वहां पे मदरसे में और उर्दू भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है। वो वहां का स्कूल है, क्योंकि हर गांव में मदरसा होता था, हर गांव में स्कूल तो होता नहीं था। अब स्कूल और पास आते चले गए, तो ज्यादातर बच्चे स्कूलों में, और इन्हें के मदरसे में 3 या 4% ही बच्चे जाते हैं, उसको भी बंद कर दो। दूसरी चीज, दूसरा डिटरमिनिंग फैक्टर है इनकम, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है पॉपुलेशन घटती है, उनकी इनकम घटाने की बात करते हैं बजाय बढ़ाने के, कि इनसे इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, इनसे फल भी ना खरीदो। अरे भाई, उनसे फल भी नहीं खरीदोगे तो वो गरीब हो जाएगा, जाके बच्चे और पैदा करेगा, फिर आपको और शिकायत होगी। तो इलॉजिकल समझने की कोशिश करो। तो उनकी इकोनॉमी को रूइन करने के रोज आप भरे पड़े हैं ये इस किस्म के प्रोपेगेंडा। हमें इसको आंसर करना चाहिए। अच्छा, हमारा फेलियर हुआ क्या कि हमने जो रियल फैक्टर थे उनको एड्रेस नहीं किया। और हालांकि हर प्लान डॉक्यूमेंट, हर स्टडी ये तो कहती थी मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, लेकिन एड्रेस कैसे करो उसकी बात ही नहीं करती थी। और दूसरे, जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि भैया मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, उसको एड्रेस करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, मैंने किताब में लिखा है, पॉलिटिकली करेक्ट बट साइंटिफिकली वेरी स्टूपिड। उन्होंने क्या लिखा कि हम रिलीजन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, हमारे हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। अरे भाई, जो डिवाइड की बात उन्होंने की थी प्रोफेसर आनंद ने, वो ही सेंसिबल चीज है। रूरल अर्बन में अगर फर्क है तो रूरल एरिया के लिए आपको स्ट्रेटेजी अलग रखनी पड़ेगी। ओल्ड एंड यंग में है तो उनके लिए अलग रखनी पड़ेगी। मुस्लिम और हिंदू में अगर डिस्पैरिटी है तो अलग रखनी पड़ेगी। तो मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कि ये इस्लाम मना कर, अगर आप फैमिली प्लानिंग वर्कर हैं और आप मेरे घर आइए कि कुरैशी तुम्हारे ज्यादा बच्चे हो गए, तुमको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, और मैं आपको ये जवाब दूं कि भाई मेरा मजहब इसको अलाउ नहीं करता, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तो आप तो मुंह लटका के चले जाओगे। मैं ये चाहता हूं कि जो फैमिली वर्कर जाए उसको ये जवाब पता हो कि नहीं तो कुरैशी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा मजहब ये नहीं कहता, तुम्हारा मजहब तो ये कहता है, और वो आयतें हदीसें उसके हाथ में हो वो थमा दे। तो लेकिन इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ ना। तो ये है। और आखिरी, ये मेरे स्लाइड का बिल्कुल आखिरी बॉटम है कि मैं पिछले दिनों 5-6 साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक कमेटी बनाई, पॉलिटिशियंस का क्या रोल है फैमिली प्लानिंग में वो जानने के लिए। उसका चेयरमैन उन्होंने मुझे बनाया,
प्लीज पिछली स्लाइड को वापस कर दीजिए। तो उसका चेयरमैन उन्होंने मुझे बनाया, तो हमने ये देखा, हमने 4 लोकसभाओं को 13, 14, 15, 16 यानी 20 साल का डेटा लिखा कि पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें से फैमिली प्लानिंग पे कितने होते हैं। एंड वी वर शॉक टू नो कि कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन बात ही नहीं करता, डरता है करते में, टैबू हो गया बिकॉज ऑफ इमरजेंसी का इम्पैक्ट। Only 0.15% questions of all lakhs of questions were on family planning, which means now we have to have a complete training program for MPs कि भाई फैमिली प्लानिंग की बात किया करो, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करो। तो ये हमें करना है। नेक्स्ट, विच इज द लास्ट रिकमेंडेशन, ये उसमें के नेशनल पॉपुलेशन गुड आइडिया, Muslims should must adopt family planning even more proactively, उनको एजुकेट करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स हो, इस्लामिक पोजीशन क्या है उनको बताई जाए और रिसोर्स बुक बना दी जाए। और जो हमारे फेथ लीडर्स हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, उलमा को ईरान भेजो, इंडोनेशिया भेजो, खुशी खुशी जाएंगे और वहां से सीख के आएंगे, मोटिवेट होके आएंगे। उधर इंडोनेशिया के, ईरान के और बांग्लादेश के उलमा को इंडिया बुलाओ और वो आके जब बताएंगे कि हमने कैसे फैमिली प्लानिंग कर ली तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। तो वगैरह वगैरह ये सारे हैं, आप देख लीजिएगा। और आई होप कि इसको पीपीटी को आप अपने पूरे इस ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा प्लीज। आई थिंक दिस इज द लास्ट। थैंक यू सर।